Hi friends, welcome to Tax Talk. I'm CA Sunil Arora and we are discussing joint development agreements. Now, we already had one session on joint development agreements, JDA and real estate. In this session, we'll be discussing taxability primarily of some specific kind of agreements which are there. It may not cover all the agreements, but some of the agreements we'll be discussing in this particular session. Let's take a simple example. A person owns, say, 10 acres of land. He enters into a collaboration with the builder for that 10 acres. कि 10 एकड़ लैंड में जो है बिल्डर जो है उसको डेवलप करेगा इनटू अ टाउनशिप एंड जो भी वो प्लॉट्स बनाएगा उस प्लॉट्स में से 40% plots he built up area he'll give it to the landowner and 60% the builder or the developer is going to keep that particular area. So now अब इसमें to calculate the taxation of such kind of a transaction, एक और transaction ले लेते हैं, similar है, मतलब I mean concept is same whether you talk of 10-acre land or you talk of say Delhi where there is a residential house, 500 square yards in Greater Kailash. Now the landowner or that house owner enters into a collaboration with the builder whereby the old building will be demolished and जो पूरी 4 floors would be constructed. The builder would retain, the builder would take 1 floor and 3 floors will be given to landowner and builder would also pay, say, just for an example, let's suppose he pays 1 crore rupees to the landowner. अब इसको, how do we calculate the taxability of this and what are the issues which arise in such kind of transaction? So इसमें जो दो main issue जो इसके अंदर आते हैं वो ये आते हैं कि this process of joint venture depending upon case to case may take 1.5 to 2 years से लेकर and it may go on for 6-7 years also. If it's a big township जहाँ पे मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बनने हैं, कॉन्डोमोनियम बनना है, से 45 स्टोरी बिल्डिंग बननी है, देन इट माइट टेक 5-7 years. बट दिल्ली का जैसे एक रेजिडेंशियल हाउस का जो कोलैबोरेशन है, दिस माइट टेक से 2 years टाइम. सो देयर आर टू इश्यूज, टू क्वेश्चंस व्हिच अराइज. वन इज कि एक तो ये व्हेन वुड दिस बी टैक्सेबल, इसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी जब व्हेन वी एंटर इनटू अ जेडीए. सो टैक्सेबिलिटी आल्सो वी कैन लुक एट इट फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स. दैट मींस डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. So indirect taxes, GST, we'll discuss separately. Right now, we are seeing direct tax implication. That means implication under the Income Tax Act. So income tax जो लगना है वो किस लगना है, जब हम JDA एंटर कर रहे हैं या जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है या सब्सटैंटिव कंप्लीट हो जाएगा, कब लगेगा? दिस इज वन क्वेश्चन. Second thing is that I am not getting consideration in cash. I am getting consideration in kind. वो कैसे कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है दिल्ली की प्रॉपर्टी में, आई एम गेटिंग 3 floors, आई मीन न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 floors आई एम गेटिंग. सिमिलरली द अर्लियर एग्जांपल जो 10 acres वाला था उसमें 40% ऑफ द बिल्ट अप एरिया, 40% ऑफ द डेवलप्ड एरिया आई एम गेटिंग. सो उसका मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालूंगा, मैं उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करूंगा. सो इन केसेस वेयर द एसेट इज हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं. दीज टू आर द इश्यूज. प्लस इससे एक कनेक्टेड चीज और आ जाती है कि व्हाट इज द एसेट विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. ये एसेट ट्रांसफर, कौन सी एसेट ट्रांसफर हो रही है, और ये जो एसेट ट्रांसफर हो रही है ये इसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, वेदर एंटायर प्रॉपर्टी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड और ओनली सम पोर्शन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच अराइज. नाउ दीज इश्यूज को जो है आंसर टू एन एक्सटेंट हैज बीन डन बाय द लेजिस्लेचर. दैट वाज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 45(5)(a) in the Income Tax Act 1961. Now, in the replaced Income Tax Act 2025, these sections have been replaced as section 67(14), 67(15) and 67(16). That means subsection 14 to 16 of section 67 of the new Income Tax Act 2025. So, primarily, what does it provide? एक तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जो मुझे कंसिडरेशन इन काइंड मिल रहा है. Now, normally in collaboration agreements या joint development agreements में partly consideration होता है in cash and part consideration is in kind. That means कुछ होता है, now it can be in the form of some refundable security, non-refundable security, adjustable amount, advance, something. बहुत सारे nomenclature use होते हैं. इन nomenclatures को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लें. बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि भाई वो मुझे जो कुछ तो कैश कंसिडरेशन मिलना है और कुछ मुझे काइंड में कंसिडरेशन मिलना है. सो कैश कंसिडरेशन तो मेरे को पता है कितना अमाउंट मिल रहा है. जो काइंड में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, दिस इज वन प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय दिस सेक्शन 45(5)(a) व्हिच सेज दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ व्हिच आई हैव रिसीव्ड, व्हिच द लैंड ओनर रिसीव्स, वो उसको कंसिडरेशन
जो है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन माना जाएगा। दैट मीन्स जैसे 3 फ्लोर वाला एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज आई एम गेटिंग 3 फ्लोर्स। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आती है कि जो मुझे पूरा फ्लोर काउंट होगा या मुझे खाली जो कंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्डिंग जो मुझे मिल रही है, खाली वो काउंट होगी। सो दिस इज अगेन अनदर कंट्रोवर्सी। नाउ इसको भी अलग से डिस्कस करते हैं हम। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज, अब दूसरे वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो मुझे 40% ऑफ डेवलप्ड एरिया मिल रहा है। लेट्स सपोज वहाँ पे फ्लैट्स बनने थे, तो फ्लैट्स का जो एरिया था वो 1 लाख स्क्वायर फीट का फ्लैट्स बनने थे, मुझे उसमें से 40,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स जो है मुझे मिल रहे हैं। नाउ दिस 40,000 स्क्वायर फीट वाले जो फ्लैट्स हैं, इसका जो सर्कल रेट होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, दिस विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हिच आई एम रिसीविंग, राइट? सो दिस इज रिगार्डिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेकंड इज ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। अब ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी के लिए सेक्शन 45(5)(a) और न्यू सेक्शन 67 जो है, 67 सब सेक्शन 14, 15, 16 जो है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 14 says कि the year in which the completion certificate for this particular project is received for the entire project or even a part of the project, this will be deemed to be the date on which the transfer has happened and the capital gains would be taxable accordingly. That means उसको उन्होंने लिंक कर दिया completion of the project से। So completion of project से जो हमने लिंक कर दिया उसको, so the year in which completion is received, that will be treated as the year of transfer. So capital gains would be calculated accordingly, right? So हमारे दो क्वेश्चन आंसर हो गए कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कैलकुलेट होगा वो सर्कल रेट पे कैलकुलेट होगा, जो मुझे काइंड में मिल रहा है, कैश वाला तो कैश में मिल ही रहा है, तो उसको तो हम टोटल कर ही लेंगे। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी जो है वो मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट से होगा। अब इसमें जो है, लेट्स सी व्हाट आर द इश्यूज व्हिच अराइज। इसमें एक जो इशू आता है वो ये आता है कि लेट्स सपोज मैंने कंप्लीशन से पहले ही अपना शेयर सेल कर दिया। दिल्ली की प्रॉपर्टी का मैटर लेते हैं, 3 फ्लोर मुझे मिल रहे थे, मैंने बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन किया इन लेट्स सपोज 2025 दिसंबर में, दिसंबर 2025 में मैंने कोलैबोरेशन कर लिया बिल्डर के साथ, मेरा कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया, रजिस्टर हो गया। ना बिल्डर ने बनाना शुरू किया, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली की प्रॉपर्टी के अंदर, मैंने तो सिर्फ कोलैबोरेशन कर लिया था। सो व्हाट आई डू इज, एक फ्लोर तो बिल्डर ने ले लिया, अब मेरे पास 3 फ्लोर बचे हुए थे। जो 3 फ्लोर बचे हुए थे, मेरे पास एक कोई बायर फैमिली आई, उन्होंने कहा जी हमारा तो 3 फ्लोर चाहिए, हमारे 2 बेटे हैं, हम दोनों को एक फ्लोर दे देंगे और एक फ्लोर हमारे को अपने लिए चाहिए, तो हम सारे तीनों फ्लोर आपके ले लेते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज दे केम टू मी इन जून 2026, अभी तो स्ट्रक्चर ही बना है सिर्फ, दे से कि डजंट मैटर, आप हमें रजिस्ट्री करा दीजिए, अभी बाद में कंप्लीट होता रहेगा, आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। सो मैंने अपना पैसे लिए, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब कंप्लीशन तो ये बिल्डिंग होगी 2027 में। सो अब इस केस के अंदर क्योंकि मैंने तो सेल ही कर दिया, सो दिस ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी का इशू आता था वहां पर जहां मैंने सेल नहीं किया है। तो ये जो टैक्सेबिलिटी थी वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन होने पे होगी, मेरे पोजेशन देने पे होगी या कंप्लीशन पे होगी, वो कंफ्यूजन था। लेकिन अब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, जब मैंने ऑल 3 फ्लोर्स अपने सेल कर दिए अभी करंट में, दैट मीन्स जून 2026 में मैंने सेल कर दिए, तो मेरा जून 2026 में मेरा कैपिटल गेन असेस हो जाएगा इसका तो। और अब इस केस के अंदर तो मुझे कंसिडरेशन का भी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज द पॉइंट इज मुझे तो कंसिडरेशन एंटायर अमाउंट आई हैव रिसीव्ड इन चेक। सो मेरा तो सारा अमाउंट जो है वो मेरे पास कैश में आ रहा है, तो मेरा तो सारा अमाउंट क्लियर हो गया। सो मुझे तो ये सेक्शन 45(a) चाहिए ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि भाई अगर मैं इसको रिटेन करता देन सेक्शन 45(a) वुड हैव अप्लाइड और सेक्शन 67 ऑफ द न्यू एक्ट वुड हैव अप्लाइड। बट अभी तो ये अगर मैंने पहले सेल कर दिया तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेरे को कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल गेन्स इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ सेकंड इशू ये आता है कि अब मेरा कोलैबोरेशन के साथ जो एक फ्लोर मेरा हुआ, उस फ्लोर का कोलैबोरेशन जो मेरा हुआ है उसको मैं क्या मानूंगा कि आई हैव ट्रांसफर्ड ओनली 25% ऑफ द राइट्स, या मैंने पूरी बिल्डिंग दे दी, पूरी पुरानी बिल्डिंग उसको दे दी, उसने मुझे नए 3 फ्लोर बना के दिए। सो व्हाट इज द एसेट व्हिच आई एम गिविंग। मेरे पास 10 एकड़ लैंड था, मैंने 10 एकड़ लैंड का कोलैबोरेशन किया, 10 एकड़ लैंड मैंने बिल्डर को दे दिया, डेवलपर को। डेवलपर ने उस पूरे लैंड का चेंज ऑफ लैंड यूज कराया, एग्रीकल्चर लैंड था मेरा, उसको उसने चेंज ऑफ लैंड यूज करा के उसको टाउनशिप के लिए अप्रूव कराया, उसका लाइसेंस लिया, उसमें प्लानिंग करी, उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, रोड्स बनाए, सीवरेज लाइन्स, देन ऑल ड्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग ही प्रोवाइडेड, उसका फुटपाथ, रोड, एवरीथिंग उसने बना लिया सब कुछ। उसके बाद उसने जो डेवलप्ड लैंड था उसमें से उसने मुझे 40% दे दिया। सो नाउ एम आई ट्रांसफरिंग 60% लैंड टू हिम, या मैंने उसको पूरा लैंड ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसने मुझे 40% दिया है। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। टू माई माइंड
जो ये 10 एकड़ वाला एग्जाम्पल है, इस केस में एग्रीकल्चर लैंड था. द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी देयर अनलेस एंड अनटिल द एंटायर 10 एकर्स इज देयर. सो आई एम नॉट ट्रांसफरिंग 60% ऑफ द लैंड. मैंने 10 एकड़ उसको दे दिया. सो माई एग्रीकल्चर लैंड, एंटायर एग्रीकल्चर लैंड गोज, और पूरे एंटायर एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स. एंड जो है वॉट एवर 40% मैंने लैंड मेरे को मिला या 40% अपार्टमेंट्स मुझे मिले, जो वी कैलकुलेटेड 40,000 स्क्वायर फीट, जो 40,000 स्क्वायर फीट के जो मुझे अपार्टमेंट मिले उसका मैं पूरे का सर्कल रेट लूंगा, राइट? बिकॉज इन दिस केस इट इज नॉट अ पार्ट ट्रांसफर. वेयर एज अब दिल्ली वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. दिल्ली के एग्जाम्पल में मेरे को जो है, लेट्स सपोज आई एम ट्रांसफरिंग 22% ऑफ द लैंड राइट्स टू द बिल्डर. अब मैं बिल्डर को पूरा लैंड तो दे ही नहीं रहा हूं. मैंने तो सिर्फ उसको राइट दिया कि भैया तू बना ले बिल्डिंग. I'll give you one floor you will get along with 22% land rights, and you would reconstruct the building and give me 3 floors. This is the basic structure. So now in this particular example, what is going to happen is that the asset which I'm transferring is only 22% of the land rights in this particular case. In this example, saying कि मैंने पूरा land transfer कर दिया और मुझे मिला है, will be a little, I would say, difficult to push through. Possibility can be there. The language has left this particular, the section has left this particular thing a little open-ended in the sense that they have not addressed this particular thing, they have not closed this particular issue directly. But then in such a situation, the asset which is getting transferred is only 22% of land right. So मैं उतना ही उसको transfer करूँगा, and accordingly cost of acquisition I'll take. So now for calculating capital gains, I need full value of consideration. वो मुझे पता चल गया कैसे calculate होना है. I need cost of acquisition, वो मैंने इस तरीके से मैं calculate करूँगा. Third is the date of the year in which this will be taxable. I have seen that it will be taxed in the year in which completion certificate is received. अगर मैंने पहले सेल कर दिया तो वो उसी टाइम capital gains assess हो जाएंगे इस केस के अंदर. So this is the basic provisions. अब इसमें कुछ problems हैं. This section 45(5)(a) and section 67, 14, 15, 16, they are applicable only to an individual or an HUF. So they are not applicable to an LLP or a company. खाली individual और HUF के केस में apply होते हैं. Then we have this section applies only if there is a transfer of capital asset happening. That means जो मैंने land या building जो मेरे पास थी या old residential house जो दिल्ली वाला example और 10 एकड़ land थी, that should be my capital asset. मेरा business asset नहीं होना चाहिए वो. That asset I was holding it as a long term for enjoying that particular asset, and I had no intentions of trading in that asset or selling that particular asset immediately after purchasing. So this is if it is a capital asset, only then these provisions would apply. Otherwise, these provisions would not apply. And obviously, I should have land or building or both. Collaboration तो होगा ही land और building और both के केस में ही होगा और किसी में हो नहीं सकता. And then the agreement should be a specified agreement. अब specified agreement वो क्या कहते हैं कि this agreement जो हम JDA या collaboration है, there are two things. One is कि एक तो ये registered होना चाहिए. The 45(5)(a) as well as section 67 now, they both say that the specified agreement should be registered. Second thing is that owner जो अपना land है should be given to the developer to develop that particular land. So the relation between landowner and developer should be that of giving the land by the landowner to develop, and developer would be developing it, giving the developed portion to some part of the developed portion to the landowner. So if the agreement is like this, which normally joint development agreements or collaboration agreements are, collaboration and joint development agreements are like that only. So if that is the situation, then these provisions would apply. So that means these provisions are applicable only in the case of an individual or an HUF, only if the asset is held as a capital asset, and only if the specified agreement is registered. That means collaboration or joint development agreement is registered, and I am receiving some portion of the developed area. अगर मुझे सारा cash consideration मिल रहा है, then these provisions will not apply. अगर मुझे कोई developed area मिल रहा है, only then these provisions would apply. और इसमें दो simple question वो answer करता है ये section. One is कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ जो मुझे डेवलप्ड पोर्शन मिल रहा है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरी कंसिडरेशन माना जाएगा, एंड द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी वुड बी द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड. बीच में वो जरूर आ गया कि अगर ये मैंने पहले सेल कर दिया तो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा. अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला इज द इंटरप्रिटेशन वी हैव पुट इन देयर कि भाई जो मैं एसेट उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में प्रोपोर्शनली लेके कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करूंगा, राइट. देयर विल बी लॉट ऑफ अदर कनेक्टेड थिंग्स आल्सो. We'll be addressing all those things in our subsequent session. So this was
joint development agreement session 2 on real estate, joint development agreements of real estate. So hopefully you must have seen JDA 1 also. So we look forward to seeing you for JDA, the next sessions also, where we'll be discussing the other aspects of this real estate JDA transactions. Thank you and bye for now.